Hello everyone. My name is Major General Balraj Mehta and you are watching my channel Commanding Excellence. Hello and good afternoon. So today here I am as announced. Today is Sunday, 2 o'clock, and I am here to talk to you about some aspect of the leadership. It's very nice to see people joining, and I'm sure you realize that I have been an army man all my life. So I have to be punctual. So that's why I am here, I think, few seconds after 2 o'clock. And I do not want to spoil the fun of people who are joining a little bit late. So we will keep on talking and continue with a serious discussion after some time when most of you have joined. Pardon my bad throat. So I am very happy to see people joining, and I am sure you would have benefited from the previous session. And this is something which is going to be absolutely informal, straight from the heart, without any script, without any kind of a preparation. And I do not uh, give any artificial kind of academic angle to this, as if I am going to teach in a class or in a seminar. But it is between you and me, between my self and my friends, whom I want to know certain aspects of my life, and maybe to be able to learn from those in their own way, depending upon their own circumstances. So I don't know if I told you about my childhood experiences, which gave me the foundations of leadership in my life later on. So, many of the modern day people, they think कि भाई अभी जो है हमने सिर्फ पढ़ाई करनी है और हमने ट्यूशन जाना है और हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी है और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत अपना एंजॉयमेंट करना है और वीडियो देखने हैं, रील बनानी है, एंड ये सब कुछ करते हुए दिस इज हमारी लाइफ है. अभी ऐशु, अभी आई एम सो हैप्पी टू नो that your father was posted in Dehradun when you were the GOC, and this is fantastic connection. I am very happy. Convey my regards to him. So the point is that when I was a child, I had various responsibilities given to me whenever the child age appropriate time came. So I was the youngest of 8 siblings. So therefore, I also had the responsibility of babysitting my nephews and nieces sometime or the other. So that was also, kind of inculcating some sense of responsibility. कि छोटा बच्चा है, गिर ना जाए, उसको भूख लग रही है, रो क्यों रहा है, उसका कोई कंघी करनी है, कोई उसको नाक निकल रहा है तो साफ करना है, कोई कपड़े खराब हो गए तो चेंज करने हैं. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, व्हेन यू आर 7 years 8 years old, सो आप लोग ये अगर काम करते हो या करते थे तो आपको थोड़ा बहुत तो जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है. आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ एंड आई कैन कंट्रीब्यूट. Similarly, when I was in class 8th onwards, so we had a plot of land in our village house, and my father suggested to me that I should start making a kitchen garden. So he worked with me initially for a few days, and thereafter I took it on. It was, I think, about 150 square yard plot, and I had the whole thing laid out very nicely. रस्सियां बांध के सीधी सीधी लाइनों में क्यारियां बनानी, नालियां पानी की. We had a hand pump
उस समय पाइप वाटर आया नहीं था. आई एम टॉकिंग ऑफ 73, 74, 75. So that was something which made me feel useful, made me feel empowered, and made me feel that yes, I can decide. अब उसमें मूलियाँ किस क्यारी में लगानी है और शलगम कितने लगाने हैं और गाजर कहाँ लगानी है, तो दिस वाज ऑल लेफ्ट टू मी, माय डिसीजन. मटर लगाने हैं कि चिड़ियाँ खा जाती हैं, लगाने हैं नहीं लगाने हैं, शलगम एक क्यारी लगानी है, 2 क्यारी लगानी है. सो दिस वाज माय डिसीजन. So abhi I used to go buy seeds and come back and make the beds, plant, arrange for the manure, water karna, ye karna, wo karna, and all those things used to give me a lot of sense of achievement. When I started going to college and school, 10th onwards, it was about 10 kilometers away. And we had milch cattle at home, गाय भैंसे थी, उनका चारा लाने के लिए फिर मुझे जिम्मेदारी मिली. तो आई यूज टू गो ऑन अ साइकिल, पीछे बोरी बांधी होती थी साइकिल की ट्यूब के साथ में, एंड आई यूज टू गो स्कूल कॉलेज ख़त्म करके मैं चारे की दुकान पे जाता था. वहाँ से 25, 30, 40 किलो चारा खरीद के बांध के लाता था, एंड देन आई यूज टू कम होम. दिस थिंग कंटिन्यूड टिल आई वाज इन बीएससी फाइनल ईयर. In fact, BSc final year, our principal retired, Mr. Juneja, God bless his soul, and a new officiating principal came who was head of the English department. तो इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले को हमारा मेडिकल वालों के, बीएससी वालों के से कोई लेने देना नहीं होता था. So he didn't know me. So one day he was just moving around of the college, and I was about to go after the classes, and I was standing next to the main gate talking to some friends near to the cycle stand, and he came. So he thought I am an outsider. He asked me, भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं यहाँ पढ़ता हूँ. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कहा जी मैं बीएससी मेडिकल में पढ़ता हूँ. कौन सा साल है? मैं कहा जी फाइनल ईयर है. So it was a shock to him कि a man looking like a bloody grown up worker, and he is a student of BSc final year and he is talking to me in English. But then I was not afraid. I was not ashamed. I was not hiding it from anybody. All my class fellows knew. They had been to my village house. They had been to see our animals. They had been fed lovely home cooked food by my mother, and there was nothing to be ashamed about. So this is something which I want to tell you, that you people who are young, they have to take on responsibility. अभी आपको मैं बताता हूँ, when I was in 10th or 11th class, it was 1976. So I had joined college, and college में फिर हम लाइब्रेरी में जाते थे. लाइब्रेरी में जाके हमें पता चलता था कि भाई यहाँ तो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं. फिर हमें फ्री टाइम में हम बैठ के अपना वहाँ मैगजीन पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे. तो I was very fond of reading since childhood. So then I realized that my village, which is just about 10 kilometers away from the town, does not have a newspaper coming there. So we decided कि हमने अभी क्या करना है. So we made a list of about 100 houses. मतलब I made a list of about 100 houses where people were little bit financially well off or educated, aware, or maybe बाहर जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है या कुछ है, तो वकील हैं, डॉक्टर हैं, उनको मैंने सोचा भी ये लोग जो हैं ये अखबार लेने में इंटरेस्टेड होंगे. So myself and one of my younger friends, we went to all those 100 houses. हमारे गांव में तकरीबन 1500 घर थे उस टाइम. तो 100 घरों में हमने उनके कुंडियां खड़काई, गेट खड़काए, और उनसे बात करी, उनसे पूछा कि क्या आप अखबार लेना चाहोगे, इतने पैसे का अखबार है, कौन सा लेना चाहोगे. और उसमें जो है लोगों ने, फिर किसी ने बोला जी हमें इंडियन एक्सप्रेस चाहिए, किसी ने नवभारत टाइम्स चाहिए, किसी ने पंजाबी का अजीत चाहिए, किसी को पंजाब केसरी चाहिए, किसी को कोई ऐसा और अखबार चाहिए. तो वो हमने फिर लिस्ट बनाई. फिर मैंने एक लड़का ढूंढा जो कि अनएम्प्लॉयड था, उसको हमने इंसेंटिव दिया कि भाई तुम इस तरह से करोगे तुम्हारी कमाई शुरू हो जाएगी. सो ही एग्रीड. ही स्टार्टेड गोइंग इन द मॉर्निंग to an agency, get those newspapers, come back, distribute those 47, and thereafter he used to get at that time in 1976 5 paisa per newspaper as commission. So with about 50 newspapers, उसका ₹2.5
रोज का कमीशन बनता था और संडे को थोड़ा ज्यादा मिलता होगा, तो उसको 75, 80, 100 रुपया महीने की आमदनी होनी शुरू हो गई। लेटर ऑन the whole thing developed and he had about, if I'm not wrong, about 7,000 newspapers, including some neighboring villages, and he had 6-7 assistants to help him distribute those newspapers. So किसी भी स्टेज पर, किसी भी उम्र में, बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी ओहदे के, बिना किसी के हुक्म दिए हुए, बिना किसी बेनिफिट या फायदे या इनाम के चाह में होते हुए भी आप कोई ना कोई काम अच्छा कर सकते हो, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लीडरशिप सिखाएगा और लीडरशिप की राह पे आपको तरक्की देगा, और उसी तरह से फिर आप लोगों की नज़रों में आओगे और संभाले जाओगे और अच्छी तरह से आपको तरक्की मिलेगी। और अगर आपको कोई रिकॉग्निशन पब्लिक की ना भी मिले, फिर भी आप जो है कम से कम अंदर से आपको तसल्ली होगी कि आपने एक अच्छा काम किया है और इसके कारण किसी का भला हो रहा है और इसके कारण किसी को फायदा हो रहा है, और आप जो है अभी किसी ना किसी को जाने के लिए, किसी ना किसी के फायदे के लिए आप लोग कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। सो ये जो चीजें हैं ना, इसके लिए आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अपने बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी भी है, आपके कितना प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक आदमी अपनी अपनी जगह पे रिक्वायर्ड है, हर एक आदमी अपनी अपनी जगह पे आपको उसकी ज़रूरत है। अगर आप ये कहो कि भाई सारे के सारे टॉप क्लास बिजनेसमैन होने चाहिए, तो भाई उनकी फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? अगर सारे के सारे बहुत बढ़िया करोड़ों रुपए की गाड़ियां चलाने वाले होने चाहिए, तो कोई ड्राइवर भी होना चाहिए, कोई गाड़ी साफ करने वाला भी होना चाहिए, कोई सर्विस सेंटर भी होना चाहिए, कोई पंचर लगाने वाला भी होना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग जो है ना, जब हम कैडेट थे, तो मैंने शायद पहले पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, कैडेट थे जब हम लोग, तो बच्चे ही होते हैं और वो एक्साइटमेंट होती है, एंड देन जो भी आदमी जिस भी किसी भी आर्म को चूज करता है कि भाई मैंने इन्फेंट्री में जाना है, मैंने राजपूत में जाना है, मैंने राजपूत में जाना है, मैंने एएससी में जाना है, मैंने इंजीनियर्स में जाना है, मैं सिग्नल्स में जाऊंगा, मैं आर्टिलरी में जाना चाहता हूँ। तो जो भी जिसको भी उसको पसंद है, तो वो अपने आप को अच्छा उसी में समझता है। लेकिन जो ये खास करके कॉम्बैट आर्म्स हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो फ्रंट पे लड़ाई लड़ते हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। उस समय की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग में, अभी अफसर बने नहीं है। सो जो फाइनल टर्म में आ जाते हैं, आपकी चॉइस ऑफ आर्म हो जाती है, आपको चॉइस ऑफ आर्म अलॉट हो जाती है, फिर आप बोलते हो हाँ जी तुम तो राशन बेचने वाले हो, तुम तो तेल पानी वाले हो, तुम तो सिर्फ स्पैनर लेके गाड़ियों के टायर ही बदली करोगे, हम जाके लड़ाई करेंगे, हमारे बगैर फौज नहीं चल सकती, हम लोग बिल्कुल टारगेट पे रहेंगे, आर्टिलरी तो पीछे रहती है 10 के 15 किलोमीटर। सो लेटर ऑन जब थोड़े मेच्योरिटी आती है, देन यू रियलाइज कि हर एक आदमी, हर एक हिस्से की, हर एक अंग की, हर एक टूल की रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ साथ ही पूरा जो मशीनरी है वो काम कर सकती है। सो अभी आप देखते हो कि शरीर हमारा है, अभी हम अगर अपने शरीर में हम किसी को बोल सकते हैं कि कोई अंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, कोई अंग इंपॉर्टेंट नहीं है? आंख, नाक, कान, जीभ, उंगलियां, टांगे, पैर, हाथ, कोहनी, घुटना, टखना, किडनी, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, क्या कोई चीज है ऐसी जो आप कह सकते हो कि जी आप इसको निकाल सकते हो? मेरे ख्याल सिर्फ जो एक अपेंडिक्स है, वो जो इन्फ्लेम हो जाती है तो उसको निकाल लेते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसके बगैर काम चल सकता है, लेकिन और किसी चीज के बगैर काम नहीं चल सकता है आइडियली।
अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो फिर भी हिम्मत से आदमी उसमें चल सकता है। लेकिन हर एक शरीर का हर एक अंग एक जरूरी चीज है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज जरूरी है। अगर आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो एमसीडी का चीफ है वो इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट और शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वर्कर है जो सीवर को साफ करता है, या जो सड़क पे झाड़ू लगाता है, या जो आपकी गाड़ी चला के आपका कचरा जाकर के डंपिंग ग्राउंड में फेंकता है। मेरा जो कहने का मतलब यह है कि आप जहां पर भी हैं आप उसको अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम के साथ, और अपने आप में आप हर जगह पर अपनी लीडरशिप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और देन एक चीज और रहती है, अभी हम सब लोग जो है ना बहुत ज्यादा उड़ते बहुत हैं हम लोगों की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, हमारी एम्बिशन बहुत ज्यादा होती है। हम ये सोचते हैं कि भाई हम क्यों ना टॉप पे पहुंच जाएं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि टॉप पे आप पहुंचो, कोशिश करो, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, उसमें लर्निंग लगती है, उसमें आपको टाइम चाहिए होता है। अब मैं कमीशन हुआ था सेकंड लेफ्टिनेंट, रिटायर हुआ मैं मेजर जनरल, इसमें मेरे लगे सर्विस 35 साल। मैं 33 इयर्स या 32 इयर्स की सर्विस में मैं जनरल बना। तो मैं अगर 1983 से मैं सोचना शुरू कर दूं कि भाई मैं तो जनरल ही बनूंगा, सो यू कैन नॉट अचीव दैट। आपका एक प्रोसेस है, आपकी एक प्रोसेस है, इसकी एक लर्निंग का सीक्वेंस है, लर्निंग की कैपेबिलिटी है, स्टेज है, और उसी स्टेज के थ्रू ही आप प्रोग्रेस करके टॉप तक पहुंच सकते हैं। जुआ खेलना या सोचना कि जी मेरी लॉटरी लग जाए, या मुझे कोई मेरा चाचा ताया मामा मेरे को राज्यसभा का मेंबर बना दे ऑल ऑफ अ सडन, तो वो बहुत रेयर चीजें होती है। लेकिन अगर आप उसी के नशे में रहोगे, उसी की दौड़ में रहोगे, तो वो फिर नुकसान होता है। मेरे कई दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं है लेकिन दोस्तों के आगे जानने वाले लोग मैंने सुना है, जो आईपीएल में सट्टा लगाते हैं, जो इलेक्शन में सट्टा लगाते हैं, और कई बार वो मोस्टली हार जाते हैं। हारने के बाद फिर उनके पीछे जो वो लोग पड़ते हैं पैसा लेने के लिए, तो यू नो द लाइफ बिकम्स हेल एंड यू स्पॉइल योर फैमिलीज फ्यूचर, and if you are young you spoil your father's hard work and savings by spoiling and wasting the money in these kind of things. और मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ है ये जो सेलिब्रिटीज आकर के इस तरह की चीजों का प्रचार करते हैं, इस तरह की चीजों की एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि आप ड्रीम 11 बना लो, आप ये लूडो खेल लो, आप यहाँ ये नंबर का गेम खेल लो, आप ये खेल लो, वो खेल लो। दिस इज एब्सोल्युटली, इसके ऊपर तो कानून बनना चाहिए। और जो समझदार आदमी है वो इस चक्कर में पड़ेगा नहीं। अभी कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, व्हाट्सएप फ्रॉड हो रहे हैं। आपको शेयर्स में प्रॉफिट के बारे में बताया जा रहा है कि जी आप लगाइए 700 गुना शेयर हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 700% प्रॉफिट हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा। ये जो है चीजें, ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम इसके चंगुल में फंसते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है कि एकदम से छलांग लगाकर हम लखपति करोड़पति हो जाएं। ये टेंडेंसी हमें रोकनी चाहिए। ये टेंडेंसी हमारे को इम्पेशेंट बनाती है, हमारा फोकस खत्म करती है, हमारे को अनहैप्पी बनाती है। क्योंकि आप हमेशा अपने बारे में इस तरह से सोचोगे तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे तो आप लोग दुखी रहोगे। ठीक है कि नहीं? अगर आप शांति से, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करते हैं, तो वो जो सारा कुछ काम है वो करते हुए आप नेचुरली अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। आपको नेचुरली आपको परखा जाएगा, आपको जांचा जाएगा, पहचाना जाएगा, और आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। आप अपने आप लीडर बन जाओगे। इसके अलावा
हालांकि लीडर जो हैं वो, मैं इस बारे में पूरा मुझे विश्वास है कि कोई लीडर पैदा नहीं होता है, पैदा मां के पेट से कोई लीडर पैदा नहीं होता है। लीडर बनाए जाते हैं, लीडर बनते हैं, लीडर ट्रेन होते हैं, लीडर ग्रूम होते हैं, एक्सपीरियंस से होते हैं, ट्रेनिंग से होते हैं। और वो जो लीडर बनता है वो अपनी, उसकी बेसिक कोई करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, और उस बेसिक करेक्टरिस्टिक के साथ साथ उसको करेक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन अगर सही है तो वो कामयाब लीडर होगा, अगर फाउंडेशन सही नहीं है तो वो कामयाब लीडर नहीं होगा। और अभी आप लोग, मैं एक किसी को जानता हूं, वो लड़के यंग था, तो उसको हमने एक बार पूछा, हाँ भाई आप क्या करना चाहते हो? कहता मैं तो पुलिस का सिपाही बनूंगा। बोलते भाई तुम कुछ और काम कर लो, तुम्हारे पास जमीनें हैं, लैंड है, खेती कर लो, ट्रैक्टर खरीद लो, अपना और कुछ कर लो, कोई इंडस्ट्री लगा लो, मशरूम का फार्म लगा लो, तुम पढ़ लिख लो भाई, ग्रेजुएशन कर लो, कोई और बात कर लो, कमीशन ले लो, इंस्पेक्टर बन जाओ। कहता नहीं जी, मैं तो ना, तो मैंने पढ़ाई करनी है, और मैंने जो है अभी मैंने जो है अपना पुलिस में सिपाही बनना है। तो हमने कहा भाई तेरे को क्या चाम है पुलिस में सिपाही बनने का? कहता जी मैंने तो रिश्वत लेनी है बस, मैं तो खूब रिश्वत लेना चाहता हूं और इसलिए मैं सिपाही बनना चाहता हूं, मैं पुलिस वालों के पास बहुत रिश्वत होती। सो इस तरह का माइंडसेट अगर किसी का है, सो क्या वो करेगा लाइफ में? और अगर वो कुछ करता भी है तो वो कभी कामयाब या सक्सेसफुल बेशक हो भी जाए, लेकिन अंदर से खुश नहीं होगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी बेईमानी करता है, वो बेईमानी कहीं ना कहीं उसका फल उसको भुगतना पड़ता है, चाहे वो खुद भुगते, चाहे उसकी फैमिली भुगते, चाहे उसके बच्चे भुगते। अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों कभी भी अपना फल दिए बगैर नष्ट नहीं होते हैं। वो कहते हैं भी कोई भी कर्म अपना फल दिए बगैर नष्ट नहीं होता है, तो कभी ना कभी आपको फल मिलेगा। सो वो गलत काम करके, रिश्वत लेके, 2 नंबर का काम करके, जीएसटी की चोरी करके आप लोगों ने पैसा कमाना है, तो हर समय आपके दिल में चोर बैठा रहेगा, और उस पैसे को आप ओपनली यूज भी नहीं कर सकोगे, छाती खोल के दुनिया को दिखा भी नहीं सकोगे। और अगर आप टैक्स देते हो और आप एक ईमानदार सिटीजन हो, तो छाती चौड़ी करके घूमो, जहाज खरीदो, चार्टर पे जाओ, आइलैंड खरीदो, जो मर्जी करो, कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता कि आप भ्रष्ट हो। अभी आप देखो, बड़े से बड़े भ्रष्ट जो हैं, जो नेता भी थे, कोई बिजनेसमैन भी थे, तो कोई तो देश छोड़ के भागे हुए हैं, कोई जेल के अंदर है, किन्हीं लोगों को जेल का डर सता रहा है, कोई डर के मारे हॉस्पिटलों में घुसे हुए, कोई बीमार है, किसी को कैंसर हो रखा है, किसी की किडनी खराब हुई है, किसी का कुछ खराब हुआ है। तो आप क्या समझते हो कि क्या वो खुश हैं? इज्जत जो है वो सबसे बड़ी चीज है। जैसे मैं पहले भी बोलता हूं, कई बार बोलता हूं, रात को आपने एक कमरे में सोना, उम्र के हिसाब से 2, 3, 4 रोटियां खानी, और सुबह उठ के जो है आप जितना भी टांगे देंगी आपको काम, उतना काम करोगे। और कितने कपड़े पहन लोगे, कितनी घड़ियां पहन लोगे, कितने चश्मे पहन लोगे? आपके पास अगर 300 जूते हैं तो एट अ टाइम तो एक ही पेयर पहनोगे। सो ये जो लालच है, इस लालच को अगर हम छोड़ दें, ईमानदारी से अपने आप को एक आदमी, भगवान का बनाया हुआ, भगवान का भेजा हुआ आदमी समझ के, कि जिसके पास कोई जिम्मेदारी है दूसरों का भला करने की, अगर आप में ताकत है, शरीर में ताकत है, आपके जेब में ताकत है, आपकी जुबान में ताकत है, आपका कोई और पढ़ाई लिखाई करने में, काम करने में, आपका कोई बिजनेस है, लोगों को जॉब दे सकते हो, गाइड कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, क्यों नहीं? सो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपके लाइफ में एक पार्ट बन जाती हैं। अभी मैं बाहर गया हुआ था वॉक करके,
तो मैंने देखा भी एक आदमी जो है उसने वो रेडी से ऐसा करके जूस पिया और वहीं पर ही फेंक दिया। सो मैंने उसको देख के स्माइल मारी और मैंने कहा भाई अभी इतनी उम्र हो गई है, कम से कम तेरी 50 साल की उम्र है, तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा। तो उसने फिर सॉरी सॉरी करके उठाया और बगल में कूड़े का ढेर था वहां डाला। सो आपको खुद ही अंदर से फीलिंग आएगी कि भाई मैं कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कर सकता हूं। तो ये जब आप अपने आप में इंप्रूव करोगे, अपने आप के एनवायरनमेंट में इंप्रूव करोगे, अपने कुलीग्स को इंप्रूव करोगे, अपने खुद के काम में इंप्रूव करोगे, आपको अपने आप लीडरशिप आ जाएगी। लीडरशिप में बस सिर्फ ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। आपको जो भी रूल रेगुलेशन है, चाहे देश का है, चाहे स्टेट का है, चाहे किसी और का भी है, तो वो जो चीजें हैं वो आपको देखनी है। अभी कपूर साहब कुछ बोल रहे हैं कि जबलपुर में मैं जब दौड़ने जाता था तो जवान जो है शक्तिमान से सैल्यूट करते थे, तो अच्छा लगता है। और ये रिस्पेक्ट जो है आपको, ये रिस्पेक्ट वही है जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिफॉर्मिटी है, अभी आप देखिए आर्मी में क्या है, आर्मी में आप लोग हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक सबको लगता है कि भाई एक जैसी यूनिफॉर्म। और सिविल में आप जैसे मर्जी घूमते रहो, हो सकता है कि कोई करोड़पति आदमी अभी घूम रहा है मार्केट में तो कुछ कई बार पता नहीं चलता। अभी मैं उस दिन खान मार्केट दिल्ली में घूम रहा था तो मुझे सडनली कोई एक सिख जेंटलमैन मिले जो कि कभी फॉरेन मिनिस्ट्री में बड़े अच्छे ओहदे पर होते थे। और मैं अभी अभी आ रहा हूँ मार्केट से, अपना सैलून वगैरह से थोड़ा, तो पास के शॉप में मुझे एक लेडी मिली जो आई थिंक उनका शी इज़ अ वेरी बिग एनवायरमेंटलिस्ट। और काफ़ी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो शॉप से, नॉर्मल शॉप से शॉपिंग करके निकल गई। जो आपके अंदर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं लीडर हूं, मेरी वर्थ है, मैंने काम किया है, जब मैं था तो मैंने काम किया, या जब मैं अपनी जगह पे जाऊंगा तो मैं काम करूंगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेसिक कैरेक्टर क्वालिटीज और जो बेसिक ट्रेट्स हैं कि लीडर कैसा होना चाहिए, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। द पॉइंट इज कि वो चीजें जो हैं वो अगर आप नॉर्मल रखते हैं, थोड़ा बहुत आपको कोचिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। और लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो आप दूसरों से करते हैं, दूसरों को देखते हैं, उससे क्या आपको लेसन मिलता है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो आप बोलते हैं अरे वाह दिस इज गुड, सो ये मेरे को देखो अच्छा लगा, उसने उसका ऐसे किया, अगर मैं भी करूंगा तो अच्छा होगा। सो दिस इज हाउ यू लर्न। सिमिलरली अगर आप अच्छा किसी का बुरा काम देखते हैं कि कोई आदमी खड़ा हो गया ऐसे फालतू में किसी को डांट मार रहा है, या कोई गलत काम कर रहा है, या मिसबिहेव कर रहा है, या वो ट्रैफिक लाइट कट कर रहा है, किसी को टक्कर मार दिया, मारते मारते बचा, चोट लग गई, ऊपर से किसी ने कोई चीज फेंकी नीचे, किसी के गली में किसी के सिर पे लग गया। जब आप किसी को भी गलत काम करते हुए देखते हैं तो आप उससे भी सीखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो है, एसोसिएशन, ये आपको अगर है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी लीडरशिप की चीजें आपको आ जाएंगी। अभी मैं इसको अभी एंड करूंगा, आधा घंटा होने वाला है, आप लोगों की भी पेशेंस खत्म हो रही होगी। सिर्फ ये मैं कहना चाहूंगा कि बेसिक कैरेक्टर क्वालिटीज अपनी ठीक कीजिए, सच बोलिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, कानून का पालन कीजिए, और अपनी सेहत को ठीक रखिए, और अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपना एक्सप्रेशन के ऊपर इंप्रूव कीजिए, लिखिए, लिख करके सीखिए, बोल करके सीखिए, पढ़ करके सीखिए, सुन करके सीखिए, देख करके सीखिए। अपने इंप्रूवमेंट करने में आप समय लगाइए। ये फालतू का जो डिजिटल एडिक्शन है कि हम रील ही देखते रहेंगे, या हम वीडियो देखते रहेंगे, सीरियल देखते रहेंगे, या हम बैठ के पिक्चर देखते रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, ये इनसे कोई आपको एजुकेशन नहीं मिलती है। ये एजुकेशन आपका जो है वेस्ट है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी अटेंशन चली जाती है, आपका माइंड जो है वो इतनी सारी चीजों को इतनी
कलर, स्पीड, उन सब का ध्यान नहीं रख पाता है, आपकी अटेंशन खत्म हो जाती है, अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, आपकी लर्निंग खत्म हो जाएगी, आपकी लर्निंग खत्म हो जाएगी, अटेंशन स्पैन कम है, आपकी मेमोरी खत्म हो जाएगी। सो आप एम्बेरस हो जाओगे, आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपको आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो किस बात की लीडरशिप की जगह आपको मिलेगी? सो ये जो है इसको आप कीजिए और इसको अपना अच्छा काम करते रहिए, और आगे से मैं और हम लोग आपस में और बातचीत करते रहेंगे। मेरे को आप लाइव के अलावा भी मेरे इस इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और वेबसाइट पर, मेरे को फेसबुक पर, जहां पर भी मुझे आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढ के अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू कोऑपरेट एंड गाइड यू पीपल फर्दर विद माय एक्सपीरियंस। एंड दिस इज सी, अभी करण जी पूछ रहे हैं कि रीडिंग फिक्शन बुक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम और नॉट। सो रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट एंड रीडिंग इज very useful, you know, it makes you understand the things. अब मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं जो बिल्कुल यहीं पर ही फिट होता है। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था, छठी सातवीं क्लासेस में, तो हमारे घर के पास में, स्कूल के पास में एक पब्लिक लाइब्रेरी थी। हमारा स्कूल 12 बजे शुरू होता था, बिकॉज एक ही बिल्डिंग में 2 स्कूल थे। हमारा सुबह लड़कियों का स्कूल होता था, शाम को लड़कों का स्कूल होता था। सो अभी जो है, अभी आपको मैं प्रज्ञा आनंद जी, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा टॉपिक्स के बारे में, आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, आई विल सजेस्ट। सो आई यूज्ड टू गो टू दी स्कूल एट अबाउट 12 o'clock। घर से निकलते थे, वहां जाते थे और वहां से 5 बजे तक क्लास होती थी। क्लास के खत्म होने के बाद आई यूज्ड टू गो टू दी लाइब्रेरी। वहां पे मैं 80-100 पेज की पतले वाली एक किताब मैं पढ़ लेता था। उसके बाद एक किताब में ड्रॉ करता था। उसके बाद घर आके होमवर्क वगैरह करना, खाना पीना खाना, ये सब कुछ कर आके सो गए। सुबह उठ के आफ्टर की मॉर्निंग वॉक, रन, गेम सेम करके आई यूज्ड टू फिनिश दैट वन बुक बिफोर 12 o'clock, हैव माई लंच, गो टू स्कूल एंड वो जो है अपना मिस्टर कपूर, आप भी अलग से मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल be able to advise you on what kind of a food you should be able to eat. मैंने नेचुरोपैथी में भी 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है and I was a bronze medalist of the course, so I will be able to tell you something with that knowledge plus practical knowledge and experience. So वो जो पढ़ाई थी वो मेरे काम आई, because I was able to get the concentration. I used to sit down, I was able to study for 4, 5, 6 hours. And it helped me to do well in exams and everywhere else. In fact, मुझे पढ़ने की इतनी लत थी कि मैं जब जैसे अपने रिश्तेदार के घर जाता था गर्मियों की छुट्टियों में, उनके घर में जितनी किताबें होती थी, रामायण, महाभारत, कोई पंचांग, कोई धर्मयुग, कोई मतलब सरिता, कोई मनोहर कहानियां, जो भी पुरानी 1-1 साल पुरानी किताबें पढ़ी, मैं सब पढ़ देता था। उस समय हमारे अखबार और ये जो धर्मयुग का ना बड़ा बड़ा मैगजीन आती थी, धर्मयुग बहुत बड़ा पेपर होता था, A4 से भी बड़ा पेपर होता था। और एक आता था इलस्ट्रेटेड वीकली, वो भी बहुत बड़ा पेपर था, मतलब तकरीबन 1 फुट बाय 10 इंच, 10 इंच बाय 12 इंच या 8 इंच बाय 10 इंच, ऐसे इतना बड़ा पेपर होता था। तो उसके जो है ना न्यूज़पेपर और इन मैगजीन्स के जो शॉपकीपर्स थे वो लिफाफे बना लेते थे, और उन लिफाफों में जब हम सामान लेके आते थे तो फिर आई यूज्ड टू ओपन दीज लिफाफा एंड उसको कागज को सीधा करके पढ़ता था। तो ये जो है, उसके बाद मुझे फिक्शन की आदत थी, एडवेंचर का आदत था, वो सब मैं पढ़ता था। तो मेरे को बहुत ओरिएंटेशन हुई, फायदा हुआ, बट आई वॉज नॉट निग्लेक्टिंग माई स्टडीज। अब मैं आपको बताता हूं ये फिक्शन पढ़ने का नुकसान कहां पे मुझे हुआ। मैं जब प्री मेडिकल में मैंने मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मैं रिटन टेस्ट में पास हो गया। उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद में इंटरव्यू का कॉल आना था, और कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी थी और कोई एग्जाम आगे था नहीं। सो उस समय मैंने खूब दबा के नॉवल पढ़े,
मतलब मैं दिन में एक एक दो दो नावल पढ़ देता था। मेरी फास्ट रीडिंग की स्पीड भी थी। मैं 300-400 पेज मतलब मैं एक दिन में आराम से 6-7-8 घंटे लगा के पढ़ लेता था। तो मैंने मतलब अंत ही उठा ली। मैंने दिन में 8-10-12 घंटे मैंने नावल पढ़ने, और मैं 1-1.5 महीना मैंने नावल ही पढ़ता रहा। उसके बाद मैं फिर मेरी इंटरव्यू कॉल आई, मैं इंटरव्यू में गया। अब मैंने अपने सब्जेक्ट मैटर वगैरह तो थोड़े बहुते पढ़े हुए थे, लेकिन अवेयरनेस कोई थी नहीं, क्योंकि मैं उसमें फिक्शन में घुसा रहता था 1.5 महीना 2 महीना। सो इंटरव्यू में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन मैंने ठीक ठाक आंसर दिए। जनरल नॉलेज का उन्होंने मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे, मुझे तीनों के बारे में कुछ नहीं पता, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन। वो मुझे क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मैंने अपने उसमें ध्यान नहीं दिया, और उस समय जो मेरा जरूरी समय था तैयारी करने का, उसमें मैंने फिक्शन पढ़ पढ़ के अपना 1.5 महीना सत्यानाश कर लिया। सो आपको फिक्शन पढ़िए, छुट्टी में पढ़िए, हॉलीडे वाले दिन पढ़िए, लेकिन जो आपका मेन काम है उस मेन काम को निग्लेक्ट करके, उसको छोड़ के अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए गलत बात है। सो इसी नोट के ऊपर आज का इंस्टा लाइव मैं बंद करने वाला हूं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोग इसमें जुड़े। और प्लीज मेरे को मैसेज कीजिए कि आप मेरे से किस बारे में सुनना चाहते हैं। लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम सो सरप्राइज कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर होएं, अपने आप में दोस्तों को बताएं, स्प्रेड आउट करें इस न्यूज़ को कि 2 बजे शार्प आई विल स्टार्ट नेक्स्ट संडे। एंड टिल देन आप सब लोगों को मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू।